So your turn now is a movement which is based on this card which says your turn now. In Hindi mein it says ab aapki bari. The first card was given out in December 2009 and now almost 14 years, more than 1 million cards are out in 50 countries. And what is your need? जब आदमी अपने नीड में रहना चालू करेगा ऑटोमेटिकली वो देना चालू करेगा. So it's like, when you have more money, you invite more people for food. It's not that then you eat more. आदमी खा खा के तो 250-300 ग्राम खाएगा और कितना खाएगा, उसका कैपेसिटी उतना ही है. और लोगों से बांटना चालू करो. तो वहाँ पे वो फिलैंथ्रोपी हमारे एक्चुअली सबके डीएनए में है, तो हम लोग भूल गए. This much money you have here, can you donate a little bit here? I have read recently US में एक आदमी था, the billionaire. What was his wish? He wants to die broke by giving out his wealth. वो एक्चुअली उसका पेपर में भी आया था, he is now at the broke level. वो मतलब पैसा नहीं उसके पास है. बिलियनर था, उसने लोगों को चैरिटी कर करके उसको खत्म करना था. आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ अ सडन दिस पद्मश्री अवार्ड व्हिच इज गोइंग टू द राइट पीपल. और ये क्या होता है ना, वो सब बिग इंडस्ट्रियलिस्ट एक्टर्स, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग in giving back to society, but the Abhi job current dekho, if you want to learn about peace and kindness, you want to teach your child about peace and kindness, this is the book we should have. We were always a nation which was about kindness, love and giving. Something else, we missed the plot somewhere. What should we do? Who's on air? Namaskaram. We have Rushabh Turakia on the show, and somebody is so nice. Let me ask him, who is Rushabh Turakia and what's your turn now? Okay, Namaskaram, as you said. Who is Rushabh Turakia? I'm still trying to figure out what I am and why I'm here for on this planet, but I can tell you what's your turn now. So your turn now is a movement which is based on this card which says your turn now. In Hindi mein it says ab aapki bari. So it says someone did a little nameless act of kindness that touched your heart. It's your turn now to multiply this feeling, be there for someone and pass on this card. So this is the card which you give it to someone when you are kind to them. Say suppose I'm from here going to station. Okay. And on the way I give a lift to someone in an auto. We're looking for an auto. बॉम्बे में क्या होता है ना कि हम लोग शेयर कर लेते पैसे. अब मैं तो ऐसे भी जा रहा था as it is going to station, and then what will happen is I'll pay my 40 rupees and I'll give this card to that person saying it's your turn now to pay for someone else. Okay. Right. So maybe he gets down at the station and he buys a ticket for a person behind him. And he pays 10 rupees or 20 rupees and he passes on the card. Maybe that person gets into that Virat train, crowded train, and he gives its seat to someone else and he passes that card. So my one act of kindness which started from here to station is now going ahead. So the first card was given out in December 2009 and now almost 14 years, more than 1 million cards are out in 50 countries. So this is in English, Hindi, French, German, Spanish, Arabic, Mandarin, international 10 languages. So depending on the country which calls for it, one side is English, other side is the local language which goes. So it becomes easier to pass the card even in that country. And this has been going around now like 14 years non-stop. And last was 2 weeks back, which I sent it to Slovenia. That was my 50th country. So what inspired you to start your turn now? And when you said, how did you reach so many countries? Okay. So first, what inspired me was, I would say, seeing too much unkindness around. Like in a place like Bombay and a city like Bombay where we stay, people don't have time. Even if we want to, say, get into the train, crowded train, people will push and go in. People will punch and go in. And seeing ladies के डब्बे में, I have seen people even pinch to go in. और अगर कोई गिर जाता है उस टाइम पे, people will stamp on that person going. They won't stop. The your turn now funda was that give that 1 minute, give that few seconds to that person and then you go ahead. मतलब there was a story where I heard के दादर स्टेशन के बाहर एक आदमी टैक्सी में, the taxi guy, he was sitting dead for 1.5 days and no one realized. He was inside a taxi and inside the taxi he was dead. Okay, I missed that. He must have got heart attack or something and no one realized that he's dead. Now
after 1.5 days, someone came to. Now what happens is, Dadar station, the most crowded station, right? लोग हजारों लोग जा रहे हैं वहां से, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि आदमी मर गया अंदर. मतलब इतने बिजी हम लोग कि हम लोग के पास किसी के लिए पूछने के लिए टाइम, मतलब किसी ने पूछा भी होगा टैक्सी खाली है, उसने वो सोया रहेगा तो कोई जवाब भी नहीं दिया होगा. बट नेचुरली, आई मीन ही इज डेड, वो अज्यूम किया रहेगा सोया है, बट नो वन बॉदर्ड टू नो दैट ही इज डेड. सो इतने हम लोग हार्टलेस हो गए यहाँ, इतने वी आर बिजी इन द लाइफ. सो दिस योर टर्न नाउ वाज मेड टू दैट गिव दैट 1 minute, गिव दैट थॉट. एंड इट्स नॉट अबाउट लाइक कुछ बड़ा चैरिटी करना है. इट्स नॉट के मैंने किसके लिए 40 रुपीज पे किया, वो कुछ बड़ा चीज नहीं है, पर वो एक थॉट जो है जिसके वजह से आप एक काइंडनेस बनना चाहते हो. लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ कि ह्यूमन बींग्स, दे आर कॉल्ड मैन काइंड. मैन इज सपोज टू बी काइंड, बट व्हाट हैज हैपेंड इज कि हम लोग भूल गए. वो स्कूल में सब सिखाते हैं कि ओल्ड आदमी हो उसको रास्ता क्रॉस कराओ, ब्लाइंड मैन है उसके साथ हाथ में पकड़ के चलो. पर जैसे हम बड़े हो जाते, कॉलेज में जाते, जॉब पे लगते, वो रैट रेस में घुस के इतना बिजी हो जाते पैसे कमाने के चक्कर में कि छोटी छोटी बातें भूल जाते. तो योर टर्न नाउ सिर्फ इसके लिए कि लाइफ में एक छोटा छोटा चीज करो. लाइक फॉर मी, लास्ट 14 years आई हैव अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई हैव टू डू one single act, at least one single act every single day. I have to make someone smile. कैसे भी करके. कुछ नहीं हुआ तो रात को उतर जाता हूँ मैं, जाके नीचे किसी के साथ जोक कर लिया या किसी रैंडम आदमी को हेल्प कर लिया, एंड आई सी दैट आई मेक दैट पर्सन स्माइल. नॉट नेसेसरी आई हैव यूज्ड द कार्ड ऑल द टाइम, बट इट्स बीन 14 years. एवरी सिंगल डे आई हैव डन दिस ऑफ मेकिंग one person smile a day, and it is so easy. You don't have to do anything big. कभी किसके लिए खाली दरवाजा भी खोल के रख दिया, ट्रैफिक में रुक जाओ और किसी को चलने भी दिया, आप देखो उसके मुंह पे कितना अच्छा स्माइल आता है. I agree to that, because whenever I am driving also, if you just allow somebody to just pass, the thankfulness is very different. वो लोग एक्सपेक्टेड ही क्यों होते हैं ना. सो दैट अनएक्सपेक्टेड हेल्प व्हेन आप जब करते हो ना, तो वो अलग ही खुशी मिलती है, और वो खुशी आपके लिए ज्यादा वो होती है. एंड दैट इज वाज द रीजन व्हिच योर नाउ किक्ड एंड इट पिक्ड अप सो वेल. एंड लाइक योर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ डिड इट रीच सो मेनी कंट्रीज. थैंक्स टू सोशल मीडिया. जब चालू हुआ था तभी फेसबुक वाज न्यू, एंड व्हेन आई स्टार्टेड द फर्स्ट डे मैंने कुछ 2000 कार्ड्स प्रिंट कराए थे, और मैंने सोचा था पूरे साल में 5000 कार्ड होएगा, कुछ 5000 अच्छे काम करेंगे और फिर दैट्स इनफ. दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आई हैड टू प्रिंट 25,000 कार्ड्स एंड इट हैड रीच 8 countries. मतलब दैट टाइम फेसबुक वॉज न्यू, पीपल वर एडेड इन द ग्रुप. कुछ लोग बाहर गाँव पढ़ रहे थे, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को ऐड किया. वैसे करके करके यूके, हांगकॉन्ग से चालू हुआ, तब पहले 8-9 countries में पहुंच गए कार्ड्स. फर्स्ट ईयर में आई रिमेंबर देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड टोगो. मेरे को एक्चुअली गूगल करना पड़ा कि टोगो आया किधर. दिस स्मॉल कंट्री इन अफ्रीका के वेस्ट अफ्रीका में, छोटा सा कंट्री है. तो वहां से भी किसी ने कार्ड मंगाया था. अच्छा. एंड आई वाज लाइक सरप्राइज कि दिस कंट्री एग्जिस्ट, एंड ये वहां पे मंगाया. देन देयर वाज अनदर कंट्री कॉल्ड लैटविया. अभी नाम मालूम पड़ा लोगों को, लैटविया कंट्री है, ऑफशूट ऑफ रशिया. वहां से कोई लड़की ने कार्ड मंगाया था, क्योंकि ये कार्ड उसको जर्मनी में किसी लेडी ने दिया था. एंड शी सेड आई वांट टू डू इट. एंड उसने लकीली वहां से मेरे को, क्योंकि मेरे पास वहां का लोकल लैंग्वेज नहीं था, तो उसने पीछे पेपर्स में जेरोक्स करके पीछे लोकल लैंग्वेज रखा था, आगे ये रखा था. एंड देन शी यूज्ड टू पास इट ओवर देयर. सो दैट्स हाउ इट रीच्ड ऑल डिफरेंट कंट्रीज. So how do people join your community? Where do they start from? Probably I don't know if you answered my earlier question. What triggered this? I said the unkindness. The unkindness which you said. Okay. So how do you create a community around this? Like how did people join your movement? So starting में the Facebook पे ग्रुप बना, Facebook पे पेज बना, अभी Instagram पे ना, WhatsApp आ गया, अभी तो काफी सारी चीजें. तो what happened was, so from the first day itself I started giving talks. I was invited for the first talk, and being a complete introvert person with lots of stage fear, first time jaake I'm talking about this. But why I started talking about it? Because my target is to reach, that time it was 7.2 billion, now it is to reach 8 billion people. Okay. So if I have to reach 8 billion people, I have to meet so many people, I have to talk to them about this. And like I said, being an introvert, for me, it's very difficult to talk. But when it comes to your turn now, I become situationally extrovert. And I start talking about it, and I started giving talks. अभी तक more than 500 plus talks मैंने कर दिए across India, across world, where even if there are 10 people, अभी बीच में एक सोसाइटी में गया था, वहाँ से 10 बच्चे लोग होने वाले थे. बोलता आप आएंगे, बोला आऊँगा. क्योंकि मुझे वो 10 बच्चे में से अगर 2 बच्चे या 4 बच्चा भी एक कार्ड को आगे लेके जाते हैं, I'll go. I'll travel. अभी recently I went at least like 8 times to Pune for 1 hour session. यहाँ से जाऊँगा, बस पकड़ूंगा, 4 घंटा टाल किया, 1 घंटा सेशन किया, 4 घंटे में वापस घर पे. Why? Because those kids, वहाँ पे हॉस्टल के बच्चे लोग हैं, तो वो 50 बच्चे में से भी कुछ लोग हैं जो आगे लेके जाएंगे.
पॉइंट इज कि जितने लोगों से बात करूँ, जितने लोगों को समझाओ कि कैसे इंपॉर्टेंट है रोज में एक अच्छा काम करना. अगर हम लोग सब लोग रोज एक अच्छा काम करेंगे तो वी कैन एक्चुअली चेंज दिस वर्ल्ड. जस्ट एक अच्छा काम करने खाली. You're into successful business, which has already been there. So when you take this time out to go to an X place and come back, how do you manage that time? That's one question. Secondly, how does this process work? Like when you have a card which is given to another person, as well, and you ask that person to continue the kindness. So you usually carry this number of cards, and it has to be a continued process. Is that so? Okay, your first question. So I used to teach time management. Okay. As a life coach, I used to teach time management, vision, mission building, and all. So for me, if I was teaching it, I have to practice myself. So I have divided my life in a day in such a way that my first 4 hours, first 1 hour is for health, where the walk or the yoga happens. The next 2-3 hours is for social work. So every day my 3 to 4 hours goes for social work. Then from 11 to 6 is my 11 to 6 or 12 to 6 is where my work comes. I'm into business of diamonds. That's where my work comes. And after 6 is family time. So that's how I've divided. So my talks also happens generally in the mornings because it's generally school, colleges, corporates होता है तो दोपहर का time होता है, which is like 1 hour I take off, जो काफी कम होता है. And Rotary Club, Lions Clubs, they generally have evening meetings post 7 o'clock. So that's when I do the social part. What was your second question? So I was asking about how do you use the card to move this on? How do you create the chain? Okay. So like first is like when I give away the cards, and second is when I go and give the talks, I give the cards to the people who are there also. Okay. So then they keep on moving the card. That's how it has reached now 50 countries because I can't be present in all the countries. I've never been to 50 countries. But then people take those cards and then they give out over there. And that's how it like I said, this girl from Latvia, she got a card from a lady who was based out of in Canada, but she met her in Germany. She'd done an act of kindness with her and she gave the card. The card actually had gone to Canada, but and that lady visited Germany and she had given her to. So you created a community around this, and people reach out to you for help, support. So whenever you give the card, there's a phone number down there, right? And it's such a cute card, you don't want to give it. So you call for more cards, and that's how I send them. So they have it has the email ID and as well the phone number. So now to that time it was only email. Now it's just phone number. So people WhatsApp it, and they call for the card. They send their stories. There are some random people who will call me that, "Arey, आपने हमारे लिए ये किया." I said, "I have not done, but because the number is mine, so I pick up." I said, "मैंने नहीं किया, पर ये किसी ने और ने किया रहेगा आपके साथ, तो उसके वजह से." You said kindness is missing, which is definitely there with our fast-paced life. We don't try to help people. We want help from people, but हम लोग वापस नहीं देना चाहते उसे. So when you're doing such a kind act, you might have faced a lot of obstacles. किसी ने बोला कि ये क्या कर रहा है यार? How do you try to convince people कि this is needed in life? So जब मैंने चालू किया था, and I think it was my first interview on radio within the first few months itself. And that evening I had my core group meeting, the boys लोग, and सब लोग ने बहुत उस दिन मेरा बैंड बजाया. क्या कर रहा है, क्या ज़रूरत है. लाइक तभी किसी का मैंने एक स्टोरी शेयर किया था, किसी ने वाशी टोल नाका पे किसी पीछे वाली गाड़ी के लिए पैसा पे किया एंड उसको कार्ड पे दिया. तो वो मर्सिडीज वाले के लिए वो 35-40 रुपीज़ का क्या वैल्यू है. वाई वुड यू डू दैट? सो माई थॉट वॉज कि चलो मैंने इसके लिए पे किया 35 रुपीज़ और मैंने बोला वो टोल वाले को तो ये पीछे उसको कार्ड दे देना. मे बी दैट गाय वुड डू समथिंग फॉर 2000 रुपीज़ और इवन 5000 रुपीज़. So there's no, उसके लिए वो बड़ी गाड़ी के लिए वो 35 रुपीज़ का वैल्यू नहीं. बट दैट थॉट, यू नो, मे बी दैट डैम ही इज इन अ वेरी बैड मूड एंड देन ही इज लाइक समवन, किसी ने मेरे को टोल ना ले. हमें कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, कुछ भी फ्री मिलता हो तो लेने वाला ही है. राइट वो फ्री अपग्रेड मांगते हैं फ्लाइट पे, तो कुछ भी फ्री हो तो वो हमेशा अच्छा लगता है वो. सो दैट्स हाउ, यू नो, द पॉइंट इज दैट शिफ्ट इन द थॉट कि ये करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि अगर हमारा मूड ऑफ है, हम लो फील कर रहे हैं, घर पे स्पाउस के साथ झगड़ा हुआ है, बॉस ने कुछ चिल्लाया है, बट दैट वन गुड डीड इफ समवन डज, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस टू यू. So that was the reason Your Turn Now started, and now it's like काफी जगह पहुंच गए, and I'm so happy about it. So with your talks, people's mindset does change, and you are creating a different energy around the place when you do that, right? I don't know, but I think last few talks of mine in this last 1 year, it has always ended up with a stand-up ovation, and
कभी कभी अभी मुझे भी ऐसा लगता है कि क्यों, बट वो लोग बोलते हैं कि नहीं यू, बिकॉज सी मेरा एग्जाम्पल्स होते सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो रियल लाइफ एग्जाम्पल। ऐसे मैं किसी को कुछ बड़ा चीज करने नहीं बोलता हूँ कि जाके किसी बहुत बड़ी मदद करनी है, 1 करोड़ का जाके डोनेशन देना है, ऐसा कुछ नहीं। पर छोटी छोटी चीजें जो हम लोग लाइफ में टच कर सकते हैं, वो कुछ भी हो पर वो करो कि ताकि हम लोग को किसी को अनएक्सपेक्टेडली किसी को स्माइल्स पे। And I think that makes a difference because when you speak from heart and when you're practicing, see बहुत लोग ऐसे होते हैं, there are many motivation speaker, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, but if you are not yourself following it and आप बोलते हो ना तो मालूम पड़ जाता है कि ये फेक है। पर जब आप खुद करते हो, और जब मैं खुद स्टोरीज बताया, मैंने आई हैव लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज, मतलब मेरा एक टॉक में खुद खड़े खड़े रह के 3 घंटा भी बात कर सकता हूँ, इतनी स्टोरीज है मेरे पास। एक स्टोरी सुनो, एक स्टोरी सुना आपको मैं। चलिए एक अच्छे, बहुत लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि कभी काइंडनेस आपके पास आया क्या, ये कार्ड घूम के कभी आ गया, तो एक वैसी स्टोरी हुई। बहुत सिंपल सा चीज़ था। आई वॉज गोइंग टू वाराणसी, हम लोग फ्लाइट में जा रहे थे एंड लेट नाइट फ्लाइट था। मैं टॉक के लिए जाता हूँ, 2 स्कूल्स वहाँ पे करनी थी, एंड मैं जैसे एंटर हुआ ना तो फ्लाइट में जनरली यहाँ पे वो नाम लिखा रहता है, मुझे आदत है नाम पढ़ने का। एंड दिस एरोसिस का नाम मैं पढ़ने गया तो पीयू करके कुछ नाम था, तो मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि काफ़ी दूर था, तो मेरे को समझ आया कि उसका नाम पीयू से कुछ चालू हो रहा है। तो मेरे तभी वो पुष्पा मूवी चल रहा था तो मेरा दिमाग में ये उम्र मम्मी दिस जनरेशन में पुष्पा नाम कौन रखा है। फिर फ्लाइट जब चालू होती तो कैप्टन अनाउंस करता है कि दिस इज कैप्टन सो एंड दिस इज द क्रू, और वो सबका नाम क्या, वो पीयू पे से नाम नहीं है। फिर जब भी वो एरोसिस वहाँ से पास हुई, मैंने उसको बोला कि डिड यू रियलाइज द कैप्टन डिडंट से योर नेम, एंड शी इज लाइक इज इट, लेट मी चेक। वो पीछे जाकर आई और जब फ्लाइट वापस सेटल हो गया एंड शी केम लाइक यू आर राइट, एक्चुअली माई इवन माई कलीग्स दे फेल्ट दैट माई नेम वॉज नॉट मेंशन, एंड शी सेड थैंक यू। ऐसा ठीक है। फिर उसके बाद लेट नाइट फ्लाइट था, फूड लिया नहीं था कि हम लोग डिनर करके निकले थे, तो शी केम आफ्टर सम टाइम, वो अपने घर का खाना लेकर आई। she came to me and she's like this is my mother-in-law's favorite sabji, you should have this with roti, वो भी घर का रोटी, मतलब you should have this। मतलब क्यों? तो नहीं, I mean there are always been so many passengers who are flying, nobody has noticed this and you noticed this and you told me about it and I was touched by it। I want you to have घर का खाना। एंड निकलने के टाइम फोटो भी लिया मेरे से। बोलते मैं, हम लोग हमेशा है ना वो स्टार्स लोग आते हैं उसके साथ लेते हैं, पर ऐसा हम लोग बहुत कम होता है कि जब हम लोग कोई हमारा सोचता है हमारे बारे में उसके साथ हम लोग फोटो लेना चाहते हैं। एंड आई मीन दैट्स व्हाट काइंडनेस केम बैक टू मी कि मुझे वो फ्लाइट डिले हुआ, थोड़ा खाना मिल गया। काइंडनेस इज एन इमोशन जो लोग probably are not practicing as much they should have, right? True. So before we started, you said that you had a life of spirituality which started at the young age of 18-19, and today there is a lot of skepticism about probably what you do also, right? कि तुम बोल रहे हो ठीक है कार्ड दिया क्या है करके, people think that way, but there's much more to it, like you are creating a certain kind of a feel in people that this is necessary to move on with life and bring that chota smile, whatever that 2 second 3 second somebody is going through a tough time, you add that it's not just about money, right? So how do you handle the skepticism about people, like how do you handle it? I asked this question in a different way earlier also, but वापस पूछता हूँ। See क्या है ना, कभी कुछ ज्यादा अच्छा होता है ना तो लोग को डाउट ही जाता है हाँ कि भाई ये तू क्यों कर रहा है, पक्का इसमें तेरा कोई there's something hidden, like I there's remember a motive behind कोई it. motive behind it. I remember in 2011-12 नया Yahoo chat और Google chat आया था, and someone from US messaged me that what is the purpose of, what are you earning in this? I said I'm not earning anything in this. This is just giving back to society. They said it's impossible. Nobody does for free. I said but that's the fact. And there was a discussion. He said I'm an economist. I know this doesn't work like this. You might be taking charges. You're making money. I said do one thing. I'll give you one month's time, 1.5 months. If you find anywhere that I'm making money, I'll stop it. Even my website is advertising free. There's no money. There's no charges in this. Though I was approached by many people, to have their name on this and give me good big money. Acha, there has been people approached you for that. 2011-12, I was offered 1.5 CR. To do what? To put their name on this card. But that's the way they would have branded themselves. That's the way they have to have branded themselves. Okay, then? But then I said no, because this is something which kindness is, it's not mine. It's no one's. It's everyone's. And it has to be brandless, because अगर मैं किसी का नाम डाल देता हूँ तो उसके followers उसको follow करेंगे और दूसरे के नहीं करेंगे. And it is not supposed to be like that. So 1.5 महीने के बाद वो आदमी का वापस मैसेज आया मेरे को US से, and he said
sorry, but I couldn't find anything. There's no way where you're making money. I said, that's what I was saying. This is only giving back to society, only to make people realize that you have to give back to society in anyhow. मतलब अगर तुम 100 रुपया कमा रहे हो, अगर 30% गवर्नमेंट बिना मांगे दे रहा है, उनको देना पड़ता है, तो 10% अपने हिसाब से किसी को दे दो आप. Start with 10%. Even when I go to colleges and schools, when I'm invited for the convocation and all, I tell them, when you're starting your first job, start with the 10%. ऐसे 10% TDS कंपनी काटेगी, 10% आप सामने से देना चालू करो. अभी से अगर चालू करोगे ना, तो eventually धीरे धीरे you increase it, because there's a science behind it. You give, it comes back 10 times, and if you do bad, it comes back उससे भी ज़्यादा bad. उससे अच्छा better कुछ अच्छा करके जाओ, so that people remember you that such a nice person you was. So this brings me to the question again about spiritualism. जहाँ पे what you give comes back is 1000% always there. I think I don't want to call it religion, but everywhere it's spoken about it. Whatever you give in terms of an emotion of love, kindness, joy, comes back to you many folds. How should we put that across in everybody's life? ना कैसे करना है कि where do you put this कि नहीं भाई थोड़ा तो करना है किसी के लिए. It's because रुक गया है. Somewhere especially in a urban city, it's almost dead हो गया. And it can be small moments, probably ऐसे तो ट्रेन में पुश नहीं करना है आपको, उसको हाथ में चल ना तू जाना, मैं रुक लेता हूँ. वो वाली छोटी मोमेंट्स भी होती है. वरना तो वही होता है, तू क्या है मैं क्या है, तू जानता नहीं मैं कौन है. So that's when you know that even that one person of that, both दोनों में से एक जन भी अगर अवेयर हो जाता है कि ठीक है वो बोल रहा है तो मैं चुप रह जाता हूँ, तो उसमें you are not weak. In fact, you are the strong one because तू चुप रह सकता है. जो weak है ना वही चिल्ला के बात करेगा. So spiritually देखा जाए तो every religion के हिसाब से बोलते हैं, every religion में बोला है. हिंदू में भी दान का बात करते हैं, मुस्लिम में ज़कात का बात करते हैं, इवन क्रिश्चियन दे स्पीक अबाउट गिविंग टू if you want to make God happy. तो हर एक रिलीजन में भी लिखा है, पर हम लोग ने ना वो कुछ बाकी सब चीज़ लेते हैं, वो अच्छी चीज़ लेना भूल जाते हैं. रिचुअल्स कर लेते हैं और ये दान देना भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें अरे यार किसको दे रहे हैं हम लोग, क्यों दे रहे. पर मत सोचो, जब तुम दे रहे हो तभी दे दो, फिर ज़्यादा मत सोचो. वो होता है, आप मैं बोलूँ ना 100 में से 2-4-5% निकलेंगे जो उसका मिसयूज कर रहे हैं, बट फोकस ही उसके वजह से वो बाकी के 95% क्यों सफ़र करें. लाइक बहुत बार बोलता है तू इतना अच्छा कर रहा है, कोई गलत चीज़ में जाएगा, कोई किसी को पैसा दे रहा है, मे बी इफ इज नॉट यूजिंग इट राइट, वो दारू पीने में ले लेगा, क्या करेगा तू. मतलब वो एक आदमी या 2 आदमी करेंगे, बाकी के तो है ना जिसको ज़रूरत है. तो उस पर फोकस होना चाहिए कि कितने लोग ज़्यादा आपके वजह से इफ़ दे आर बेनिफिटिंग. अभी अगर किसको एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, किसको हॉस्पिटल के लिए दे रहे हैं, किसको स्किल बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं, इफ यू आर गिविंग इट फॉर समथिंग, देन योर फोकस, योर इंटेंशन इज गुड ना, तो आगे वाला अच्छा ही करता है. There's a stigma attached to that. NGOs का नाम बुरा होता है, तो when you say कि किसी को देना है, वो सही जगह पे पहुंचा कैसे पता चलता? Especially when in a larger NGO setup, you don't know because it's being misused. There is enough evidence on that. So when you do it with the full heart, like how you had an example of the American person pointing a finger at you, then you had it very clean. So sometimes the records are not there कि कहाँ गया पैसा. How do you tackle something like that? So see, इसमें भी like how I said के कुछ लोगों की वजह से बाकी पूरा लोगों का नाम खराब है. See, there are NGOs, yes, it's not about misuse of the funds, but sometimes the funds are not tracked properly. Like because of doing your turn now in last 14 years, I have met only all beautiful souls. मतलब मेरा पाला ही ऐसे लोगों से पड़ा है कि जो लोग को लग के देखता है यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. अच्छा. इतने अच्छे लोग ही मिले मुझे, क्योंकि maybe I think that why give out, or maybe I'm lucky enough to get them. But yes, what happens is जब NGO बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो वो जैसे mismanagement जैसा हो जाता है. So now that is up to the founder how he, or the trustees how they take care of it. But that doesn't mean that all are bad. Yes, some places there are lots of expenses which happens unnecessarily. Like I know there's one NGO जिसका out of 100 rupees where they get 80 rupees they spend on marketing, and 20 rupees actually goes to the needy. So which is also... Why does an NGO need marketing when it's... To get more money. To get more money or to promote the cause. But then हम लोग क्या होता है ना, हम लोग को लगता है कि अरे हम लोग 100 रुपया दे रहे तो पूरा 100 रुपया यूज होना चाहिए. But then अभी क्या हो गया ना, NGOs also have become like corporate. They also need good people to run and to scale up.
So there are people who are actually now giving only salary for those people. अभी कोई सीईओ है, बड़ा सीईओ कंपनी का, उसको वहां पे 4-5 लाख मिल रहा है, और अगर वो एनजीओ में आएगा तो वो 4-5 लाख अफोर्ड नहीं करने वाला है, वो 1-2 लाख ही कर सकेगा उसको मैक्स. तो अभी कुछ लोग ऐसे डोनर्स आ गए जो ये सब स्पॉन्सर करते हैं कि आई विल गिव यू अ गुड सीईओ एंड स्केल अप, क्योंकि इतना काम करना है. गवर्नमेंट करती है तो भी एनजीओज को भी इतना काम करना पड़ता है एंड इट्स नीडेड. सब जगह नहीं पहुंच सकते लोग. एंड आई हैव सीन, आई एम इन टच विद सो मेनी एनजीओज. मतलब अभी तो इट्स लाइक किसी को कुछ भी चाहिए, देना हो, करना हो, मेरे को खाली पूछे तो आई कैन टेल यू विच इज अ जेन्युइन एनजीओ, विच इज नॉट, विच इज अ एनजीओ विच रिक्वायर्स एक्चुअल मनी and they are working on grassroots level. There are NGOs who like ample of money, they know what to do with the money. वैसे भी है. तो अभी कनेक्शन ऐसे हो गया है सब जगह कि मुझे पता अच्छा इसको ये करना है तो मैं बोला इसके पास जाओ, इसको भी जरूरत है, ये they will do it. और इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि it should come out in open. Every NGO should put their balance sheet out in open. That's necessary. They should make it mandatory. Mandatory it should become, and so the transparency will help. People will know कितना पैसा आ रहा है, इसको कितना जा रहा है, और कितने लोग दे रहे हैं इसको, एंड वेयर आर दे यूजिंग इट, व्हाट इज देयर एडमिन कॉस्ट. समटाइम्स द एडमिन कॉस्ट इज अननेसेसरी वेरी हाई, बट देयर आर बेसिक व्हिच इज रिक्वायर्ड, बट देन देयर हैज टू बी अ लिमिट के 8%, 10%, सम लाइक 80% इज समटाइम आई फील ओके. देन पीपल फील अरे यार मैंने तो दे दिया. वो मार्केटिंग ऐसे करते हैं ना कि हम लोग इजीली दे देते हैं, वो पता नहीं चलता तो 100 रुपये में से 80 रुपये तो गए इसमें, और 20 रुपये एक्चुअली बच्चों को गए. तो मार्केटिंग से याद है और बच्चों से याद है कि देयर आर लॉट ऑफ दिस यूट्यूब बिफोर यू ओपन देयर इज एन एड व्हिच कम्स अबाउट sick child, and sometimes the news feed says sick child and said donate. There are calls which come, donate. What is it? Marketing. That is marketing. Marketing, pure so marketing. Does that particular person or child get that help? So now there are a couple of things. This crowdfunding sites, again, amazing work they are doing. उनके वजह से काफ़ी लोगों को हेल्प भी होती है. पहले they used to charge I think 8 to 10%. So मतलब आप 100 रुपये दे रहे, 10% वो क्राउड फंडिंग साइट की, उसको भी चलाना है साइट, राइट. एंड देन 90% यूज टू गो टू एक्चुअल पेशेंट और समवन हु इज इन नीड ऑफ एजुकेशन और समथिंग. बट नाउ आई थिंक देयर आर मेनी एनजीओज हु हैव लर्न दैट they give you an option to donate extra to run the NGO, to run the site. तो इट्स नॉट कंपल्सरी. मतलब 1000 रुपये दे रहे तो पहले वो लोग कम से कम 1000 में से 10 रुपये ले लेते थे, बराबर 10%, सॉरी 100 रुपया ले लेते थे. अभी वो लोग ऑप्शन देते हैं आपको कितना देना है, 100 देना है, 50 देना है, 200 देना है. वो लोग के ऑप्शन दे देते हैं. कुछ एनजीओज ने वैसा, कुछ क्राउड फंडिंग साइट ने ऐसा चेंज किया, पर कुछ लोग जो नहीं किया एंड दे मेक मनी इन दैट. एंड काफ़ी लोग उसमें आई मीन there are cases where wrong health certificates और पूछ के लोग ने पैसा भी ले लिए. So that due diligence has to be done by those crowdfunding. जो I think now they're getting stricter in doing it. Otherwise पहले कुछ भी लोग कैसे भी पैसे ले रहे. मतलब एक ही पेशेंट को 4 जगह से मिल रहा था पैसा. रिक्वायर्ड 1 लाख था, मिलता था 4-5 लाख आ जाता था, वैसे हो जाता था. So the governments are looking into it, like you feel so? I don't think so if government is doing anything about it, but I hope the crowdfunding should be doing it. Okay. Well, government is getting stricter about where the funds are coming from. FCR has become difficult. Foreign का पैसा आते हो difficult आ गया. They have become very strict about it, and compliances बहुत बढ़ गए. But that's the process. I think they're making everything very to simplify it later. So you are getting right funds. At least वो बहुत लोग होते हैं जो black का white करने के लिए भी NGO में पैसा डालते हैं. पॉसिबिलिटी है, चलता भी है. इंडिया है, जुगाड़ तो होना ही है. तो अभी you have been awarded certain पुरस्कार्स and all that. Tell me more about it, for all the good work you've done. All the good work I have done. अभी एक्चुअली ऐसे क्या हो गया ना, उसमें भी अभी आजकल जिसको देखो अवार्ड ले रहा है, पुरस्कार दे रहा है, फिर जब मालूम पड़ता है बहुत टाइम आता है मुझे ईमेल कि यू हैव बीन नॉमिनेटेड, और फिर नीचे जाओ तो टर्म्स एंड कंडीशन में यू हैव टू पे 50,000, 1 लाख, 10,000 एनीथिंग. तो मैं वो लोगों को रिप्लाई करता हूँ. I think I feel I'll be eligible when this is awarded to me without any charges, because then I think I need to do a lot of work, still more work. Then I'll be eligible. So there are certain very genuine awards like तो वहाँ पे it's just that you have to fill the form and what kind of work you've done, and they actually do a third party check, verification, and also a third party market research team, they check question answers होते हैं. मतलब अभी मैं recently एक भर रहा हूँ अवार्ड के लिए, my God 20 questions इतने deep में है. It helps me to even think about myself, what I'm doing, and then they give to them, then they feel that now you deserve it.
तो वैसे सब अवार्ड्स भी होते हैं जहाँ पे जेन्यून अवार्ड एंड इट्स इम्पोर्टेंट लाइक आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ अ सडन दिस पद्मश्री अवार्ड व्हिच इज गोइंग टू द राइट पीपल. अर्लियर क्या होता है ना, वो सब बिग इंडस्ट्रियलिस्ट एक्टर्स, आई मीन आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग इन गिविंग बैक टू सोसाइटी, बट अभी जो आप करंट देखो, कहाँ के गांव से लोगों को पकड़ के लेकर आए. You've been a recipient of one of the Padma Shri. No, I've been of Karmavir Chakra. Karamveer, sorry. Yeah. You recipient of one of the Karmavir Chakra. पद्मश्री अभी टाइम है, अभी और अच्छा काम करना पड़ेगा. We'll look forward to it. अभी बहुत अच्छा काम करना बाकी है. तो जेन्यून लोगों को मिल रहा है, जो लोग ने एक्चुअली दे हैव मेड अ डिफरेंस इन पीपल लाइफ. किसी लोगों ने फॉरेस्ट पूरा खड़ा कर दिया, किसी लोगों ने पूरा विलेज को एजुकेशन पूरा ट्राइबल विलेज को चेंज कर दिया है. बहुत लोगों को जॉब्स, मतलब आप देखोगे वो लोग को ऐसे बिना चप्पल के आते हैं लोग, एंड इट्स अमेजिंग द काइंड ऑफ पीपल, सो इंस्पायरिंग. अर्लियर तो ठीक है, आई मीन ऑल सेलिब्रिटीज हु वर गेटिंग इट एंड व्हिच वाज नॉट सो इंस्पायरिंग. आई मीन आई डोंट गेट इंस्पायर्ड विद देम, इट्स नॉट, आई मीन इट्स माय पर्सनल चॉइस, बट दिस अदर पीपल व्हिच दे आर ट्रूली डिजर्विंग. और वो लोग को बाहर लाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन लोगों से काफी चीज सीखना है हम लोग को. जो क्या होता है ना, अभी नेक्स्ट जनरेशन जो सोशल मीडिया पे, वो लोग सब कोई सोशल मीडिया पे नहीं है. नेक्स्ट जनरेशन जो सोशल मीडिया पे दिखता है वही है. अभी आजकल के जो सोशल मीडिया पे है, मतलब वो सही है, आदमी है, दिखता है, वो बिकता है, वैसे है. और ये लोग है जो चुपके से कर रहे हैं अपना काम, एंड दे आर इन एक्चुअली नीड मे बी ऑफ फंड्स और एक्चुअली वॉलंटियर्स टू हेल्प देम. तो वैसे लोग को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है. That's very necessary in what you're doing. So बहुत सारे बुक्स लिखे आपने, थोड़ा बताओ उसके बारे में. What are the books about? We'll probably make sure that you show it on screen also, and we'll pop it up later. Books के बारे में बताओ आपको. Okay, so my writing journey started long back, and that time in 2004-5 something, I used to write. This is around 2007. I used to write, and I used to single small article what I learned from life. So छोटा article लिख के I used to post it on Facebook, and that time people used to see it. I mean, not everybody. In 2007, Facebook was very new. Nobody knew. So one fine day, a cousin calls me and she's like, "Send me your address." I said, "Maybe को invite भेजना है उसको." We meet generally socially once in a year or once in 2 years. And evening में mom calls up, तेरे नाम की 500 बुक आई. मतलब मेरे नाम की 500 बुक कैसे आ गई? 500 बुक. So I said, so what she did, all my articles on Facebook which I had posted, she compiled and made a book of it. And that's how how I became an author. And then second book came out, and these are all Facebook posts which have become books. Facebook posts. And she was so inspired by it. He said your knowledge should go to people beyond Facebook, because she wanted to to reach even elderly people who were not there on Facebook that time. उस टाइम कुछ ज़्यादा लोग होते भी नहीं थे, तो वो लोग के बियॉन्ड जाना चाहिए. फिर बाद में after that what happened was, when I was doing this Your Turn Now, and I used to put money into it of printing the cards, courier in the cards. Printing तो ठीक है, एक साथ बल्क में हो जाता है. Courier was very expensive. So if I have to make this self-sustain, how do I do this? So every alternate days I used to get story from random people, how they have either got the card, received the cards, or they have given the cards. And different languages में, कभी छोटा SMS करेगा, तभी SMS था, छोटा SMS में आता था. Let me compile this story and make a book of it. Whatever comes royalty, I'll use for charity, or at least sponsoring this, sustaining this movement. And so with that, so I approached many publishers. सबको idea तो बहुत ही अच्छा लगता है, but in the end they have to make money. They are producers or publishers. And finally this one lady, and she was also a startup that time. She said, "I'll do your book." Very sweet lady. And then we made our first book, which was this Your Turn Now, which is all real stories of how people have used these cards. International stories, Indian stories. Only thing is we've changed the name and the location, because the card is a nameless act of kindness. Coming from a spiritual background, एक वो अहम नहीं होना चाहिए मैंने कुछ किया है. So you be nameless, you be like, ठीक है, एक काम हुआ है. And आप कोई भी स्टोरी उठाओ, कोई भी पेज खोलो, एक पेज 2 पेज का स्टोरी, यू लाइक, अरे ये तो कितना ईजी है, तो मैं भी कर सकता हूँ. So इसमें 5 साल की भी बच्चे की भी स्टोरी है, 70 ईयर और आंटी की भी स्टोरी, अलग अलग. So this was in 2012 this book came. In 2016 then another book came out, which is again different stories. Okay. And then 2020 third book came out. So this is again different stories, and they came in the bestsellers by Crossword, most memorable book by Amazon. And a list आया था 2020 में, just before COVID, where across the world there were 8 books chosen which teach you peace and kindness, and out of those 8 books, one book was Your Turn Now. Wow.
एंड बाकी सब इंग्लिश या अमेरिकन ऑथर थे एंड ये एक ही था जो इंडियन था जो वहाँ पे इफ यू वांट टू लर्न अबाउट पीस एंड काइंडनेस यू वांट टू टीच योर चाइल्ड अबाउट पीस एंड काइंडनेस दिस इज द बुक यू शुड हैव इस बुक में से एक स्टोरी भी सुनाओ आप। एक बुक में स्टोरी इस बुक में एक स्टोरी भी सुना लेते क्या हो गया उसमें तो हाँ एक 5 साल के बच्चे की स्टोरी थी एंड ये रिटन दिस कार्ड इट्स लाइक छोटी सी स्टोरी है डियर लिटिल ब्लू कार्ड सो आई बिकॉज आई गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड आई गिव टॉक्स तो इवन नर्सरी के बच्चे उनको भी समझाता हूँ और वो लोग भी समझते हैं इनफैक्ट बच्चे तो सबसे ज्यादा वो ले लेते हैं उनको पता है अच्छा करना क्या है तो हम लोग बचपना खो देते हैं जहाँ पे काइंडनेस कम होता है। हाँ वही मतलब रैट रेस में आते हो जाते हैं बहुत अच्छा है डियर लिटिल ब्लू कार्ड आई लुक अराउंड मी एंड सी सो मेनी वेज इन विच आई कैन हेल्प अदर्स बट आई फील अ बिट स्कैर्ड टू रीच आउट टू देम What if they get annoyed when I offer help? जैसे आपने बताया कोई skeptical होगा. What if they think I'm just a small kid trying to act smart? He was a 5-year-old. Yesterday, someone at school gave you to me. As soon as I saw your happy face, so it's like gave you to me. This is about story about us. So we tell kids, share your story about this little blue card. क्योंकि बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं little blue card करके, तो वो लोग को अच्छा लगता है. As soon as I saw your happy face, I felt brave. I felt confident enough to offer my help to anyone in need. And you know what? My chance came pretty soon. Today, as I was walking down the street with my mom, we saw an elderly lady carrying several bags. I made Mama stop and asked the lady if we could help her carry her bags. ये 5 साल का बच्चा अपनी मम्मी को बोल रहा. She was very surprised. But we took her bags and walked home with her, although we had to go out of our way. Auntie was so thankful. She was also very surprised when I gave you to her. So basically, when I gave you to her, what she read made her smile and pet my head. Blessing jaise diya. I know that I'll be doing this ever so often. Thanks, little blue card, for giving me the courage to be kind. Love, Vivan. उसने मेरे को ये स्टोरी तो बेसिकली उसकी मम्मी ने भेजा था मेरे को पर क्योंकि बच्चे की स्टोरी थी तो हम लोग ने फिर उसको रिफ्रेश करके ऐसे कर दिया. सो दिस मतलब ये कार्ड की वजह से लोग काम करते भी हैं. अभी बहुत बार मुझे ऐसी भी स्टोरी आती है कि सम पीपल डू एक्ट ऑफ काइंडनेस जस्ट बिकॉज दे वांट टू गेट रिड ऑफ द कार्ड. फॉर मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट वन एक्ट ऑफ काइंडनेस. ऐसे भी आते हैं बहुत लोग बता रहे हैं मैंने किया क्योंकि ये अभी एक आपको एक स्टोरी बताता हूँ. यंग लड़का था अराउंड अर्ली 20s एंड गुस्सा वाला बंदा तो किसी ने उसकी गाड़ी ठोकी टच की टैक्सी वाले ने पीछे से एंड उसने मेरे को बताया कि अगर ये मैं होता ना एक्चुअल में तो उसको मैं धोया होता बराबर से. पर उस दिन 1-2 दिन पहले ही अपना बात हुआ था आपने एक कार्ड दिया तो मैं उठा और वो बाहर निकला वो टैक्सी वाले को एक कार्ड दिया. तो पहले तो ही वाज लाइक बॉडी बिल्डर टाइप तो पहले तो टैक्सी वाला बोला क्या अच्छा इधर जाके पैसा भरना है क्या. तो बोलते नहीं तूने टच किया मेरे को मारने का बहुत मन हो रहा है पर छोड़ रहा हूँ अगली बार तेरा कोई टैक्सी ठोकेगा ना तो जाने देना उससे और ये कार्ड उसको दे देना. So that was the difference in that person. And when he had this card, and he said, now I got rid of the card. मैं वापस गुस्सा होना तो हो सकता हूँ. So मतलब उसने बाद में मस्ती में बोला, but this is what the people who have done the act because they want to do an act of kindness. Philanthropy of kindness. How can India as a country can improve on it? What are the things we should look at? Because I think we were always a nation which was about kindness, love, and giving. We missed the plot somewhere. What should we do? Philanthropy is what? Giving things. It could be money, it could be time. But yes, we were always into like हमारे महाभारत में कर्ण है. I mean, उससे बड़ा दानवी बोलता है कोई नहीं उससे जो भी कुछ भी मांगता है वो उनको दे देता था. कवच कुंडल भी अपना दे दिया था. तो point is what has happened is somewhere down the line that corruption has come into the system. So instead of just being focused on your need, now we are focusing on more of want and greed. अभी कल ही मैं कुछ पढ़ रहा था काफी अच्छा था. There's something called this is more than enough. मतलब एक लिस्ट बनाओ आप जिसमें लिखा है कि आपकी नीड क्या है और एक लिस्ट बनाओ जिसमें लिखा है आपके पास क्या है. You will see what's the difference. नीड क्या है इतना मेरे को 4 जोड़ी कपड़े चाहिए 7 जोड़ी कपड़े चाहिए मैक्स. इतना खाना चाहिए इतना घर चाहिए. 2 आदमी घर रह रहे तो 2 बेडरूम बहुत इनफ हो गया. 1 बेडरूम भी बहुत इनफ हो गया. तो तुम्हारे पास 4 बेडरूम है 2 आउट हाउस है. So that becomes a greed or a want. And what is your need?
जब आदमी अपने नीड में रहना चालू करेगा, ऑटोमेटिकली वो देना चालू करेगा. So it's like, when you have more money, you invite more people for food. It's not that then you eat more. आदमी खा के तो 250-300 ग्राम खाएगा और कितना खाएगा, उसका कैपेसिटी उतना ही है. और लोगों से बांटना चालू करो. तो वहां पे वो फिलैंथ्रोपी हमारे एक्चुअली सबके डीएनए में है. अच्छा. तो हम लोग भूल गए. वो ऊपर से आजकल आई वुड से सोशल मीडिया बून भी है, बेन भी है. मतलब लोगों को देख के यार इसके पास ये है, यहाँ घूम रहा है, ये वहाँ घूम रहा है, उसने ये खरीदा, उसने घड़ी खरीदा, उसने बड़ी गाड़ी खरीदी. उस चक्कर में शेयर करना भूल गए हम लोग. जबकि लिखा है शास्त्रों में कि अगर ज्यादा है तो शेयर करो, पर अभी यहाँ पे ऐसा है कि ज्यादा है तो और ज्यादा ले लो. Or it's never ending, because Never ending. today the latest record shows that a place like Mumbai has the max number of billionaires now. So is a place where we have startups. This much money you have here, can you donate a little bit here? How can we bring it with some government policies and all that? Is there a possibility that we can approach as X person to help, support, and let that person grow? Somebody who's new in the industry. When I'm talking about as a growing country, what is the possibilities which the government can help and support? See, government का CSR है, जो CSR rule है, I think there's some 2% of the income you have to give if you are certain about certain turnover, ऐसा कुछ है. But 2% is what? कुछ नहीं. मिनिमम 10% होना चाहिए. एंड इट हैज़ टू बी. अभी क्या हो रहा है ना, उसमें भी हम लोग, जैसे बोला, हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं. उसमें भी कंपनीज वो लास्ट 3 महीने में ढूंढेंगे किसको, या अपने ही एक फाउंडेशन बना के उसमें कुछ करेंगे. सी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड. देयर आर कंपनीज हु डू जेन्युइनली अमेजिंग वर्क करते हैं. बट देयर आर कंपनीज वो खाली दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रूल है. वो इम्पोज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक वो अंदर से नहीं आता ना, तो बहुत डिफिकल्ट है. अंदर से अगर वो कंपनी का ओनर, फाउंडर, अब देखो काफ़ी लोग हैं, जैसे टाटाज है, अजीम प्रेम जी है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और दिखा रहे. लाइक यू गिव आउट योर वेल्थ. अभी आई हैव रेड रिसेंटली यूएस में एक आदमी था, बिलियनर. व्हाट वाज हिज विश? ही वांट्स टू डाई ब्रोक बाय गिविंग आउट हिज वेल्थ. वो एक्चुअली उसका पेपर में भी आया था, ही इज नाउ एट द ब्रोक लेवल. वो मतलब पैसा नहीं उसके पास. अभी बिलियनर था, उसने लोगों को चैरिटी कर करके उसको खत्म करना था. ऐसा नहीं कि मुझे और जमा करना है. सो जब वो खुद में आएगा ना, जैसे लाइक आई नो देयर इज अ ग्रुप कॉल लिविंग माई प्रॉमिस करके, where there are amazing people, and it's not like they are billionaires, they are millionaires, where they have promised to give away more than 50% of their wealth. To what causes? To cause which they feel is good. Like some people would like to give for animals, some people would like to give for say special kids, some people would like to give for only blind people, or some people would like to give only for education. Choice आपका, पर आप दो. And this kind of group needs to be promoted, where कि ऐसा नहीं कि वो बिल गेट्स ने अपना इतना इनकम दे दिया है, या किसी और बड़े लोगों ने इतना. इससे भी और भी कितने लोग, हम लोग लो लेवल में भी, ऐसे नहीं कि मिडिल क्लास भी कर सकता है, पर वो एक अंदर से आना चाहिए. फिर लोग बोलता रहे यार खुद की सैलरी का ठिकाना नहीं, यहाँ पे मैं कहाँ इस पे देना बैठूँ. ऐसा नहीं है. मैंने क्या बोला ना, पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है. आप वो अगर 2 घंटा टाइम निकाल के दे दो, कोई एनजीओ में जाके वॉलंटियर करो, कोई एनजीओ में जाके अपना, लाइक अगर आप एक मिडिल क्लास अकाउंटेंट हो जो इतना सैलरी कर रहा है, आप चलो आपको सैलरी नहीं देनी, पर आप जाके वो सेवा एक एनजीओ में दो, ताकि उसका आप अकाउंट मैनेज कर सको. उनको पता चले उनका कहाँ पे लॉस हो रहा है, कहाँ पे उनको और पैसे आ सकते. वो आप जाके अपने टैलेंट को यूज करो. अभी जैसे कैमरामैन, राइट, यहाँ पे चलो उनको शायद पैसा मिलते हो, पर कोई जाके कोई एनजीओ के लिए एक फिल्म शूट कर दिया उन्होंने, जिससे वो एनजीओ का प्रचार हो रहा है, और उसको अगर किसी से उस चीज के लिए डोनेशन है, तो वो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है. एंड दैट मेक्स अ यूज. एवरी स्किल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एन एनजीओ. तो जब आप वो देते हो, अपने सेल्फ को दे रहे हो. एंड टाइम इज समथिंग, आई थिंक सबसे बड़ा चीज. मतलब पैसा तो आज अगर दिया तो कल कमा भी लूंगा. टाइम आज दिया मतलब गया वो आपका टाइम, वो आपका टाइम वो चीज के लिए गया, वो आप डोनेट कर दी. इट्स लाइक लाइफ लॉन्ग, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स. तो अपना जो स्किल है, अपना जो मैनेजमेंट स्किल है, मतलब कोई भी छोटा सा स्किल, आप हर एक स्किल, हर एक प्रोफेशन कैन बी यूज फॉर अ गुड कॉज. वो अगर हम लोग ला सकते हैं. एक टीचर है तो भले आप इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते हो, लेकिन सामने एक घंटा आप कोई गरीब बच्चे को पढ़ा लो, दैट मेक्स अ डिफरेंस. तो हर एक प्रोफेशन देयर यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन गिव बैक टू सोसाइटी. Nice.
what keeps you so motivated? What is the passion which is created within you that every single day you do whatever time of this? What is the kind of driving force within you? कि नहीं करना है करना है? Is it an habit which is formed, or is it something which is a small thing within you which is a spark? Because you have touched many lives and it's continuing. It's just that you created a chain, and we hope and pray and wish that this becomes like a global movement, that blue card should be seen everywhere. So what is the spark within you? The spark is the smile. वो जो smile आप जब देखते हो ना, जब when you are helping someone, that's another level. I have documented some 94 stories of a random act of kindness during COVID times, which I used to do it. I'll share those stories. पर ये जो spark जो है ना, रोज सुबह लानी पड़ती है. तो स्माइल आना चाहिए किसी के लाइफ में. Okay. वो बहुत इंपॉर्टेंट. और क्या होता है ना, मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ हमेशा, मैंने स्टडी किया काइंडनेस एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर, कि जब आप किसी को हेल्प करते हो ना, तो आप वो आदमी नहीं, आप भी उतने ही खुश होते हो. आपका भी वो केमिकल छूटता है ब्रेन में जो आपको हेल्प करता है, खुद को हेल्प. मैं तो लोगों को ये भी बोलता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता हूँ कि इफ़ यू आर फीलिंग लो, कॉर्पोरेट में जाता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आज बॉस ने कुछ डांट लिया है, या वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या हस्बैंड के साथ हुआ है, go out and do a random act of kindness. That's a very good way to do it. Like your mindset will change. अभी घर पे से झगड़ा करके आया हूँ मैं, तो रास्ते में जाके मैं रोड रेज ही करने वाला हूँ, पर उस टाइम पे अगर मैं गाड़ी रोक के किसी को जाने देता हूँ, that mindset will not, मेरा भी चेंज होगा, उसका भी चेंज होएगा. मैं भी वो भी किसी के साथ कुछ करके आया और उसको लगा कि किसी ने अच्छा किया तो वो भी, उसका भी माइंडसेट चेंज हो जाएगा. क्या होता है ना, नेगेटिविटी का जो साइकिल है ना, उसको स्टॉप करना है. और वो स्टॉप करेंगे कभी जब आप खुद अवेयर होंगे कि नहीं, यहाँ पे मुझे स्टॉप करना है और मुझे यहाँ से पॉजिटिव आगे बढ़ाना है. एंड व्हेन यू स्टार्ट दैट, ऑटोमेटिकली वो कीप्स ऑन मूविंग. कभी आप देखो कि कोई अपने साथ अच्छा करता है, हम लोग नेक्स्ट आदमी के साथ अच्छा करते हैं. जैसे जब भी मैं भी टॉक पे जाता हूँ ना, आई एम इन अ कंप्लीटली डिफरेंट. मतलब कितना मैं बीमार भी हूँ, मेरे को मालूम है, आई बीन लाइक उठने का तक है, लेकिन मेरा अगर कमिटमेंट है कि मुझे जाके टॉक करना है, तो मैं वहां पे जाता हूँ एंड आई कम बैक कंप्लीटली डिफरेंट, चार्ज. एकदम completely charged. Most of your talks had been standing ovations, right? So recently. So because I think that's the love and the energy which moves on to you. So when you have done so much of kind acts, how has it affected your relationship? How do people look at you today? I think this is what I have heard, that my presence just helps them to be calm. मतलब अगर ये कुछ सिचुएशन आया है और ऋषभ अगर आके खड़ा है, मतलब there is not nothing to worry now. Now things will settle down. So that's the aura you generated now. I mean, this is what people tell me. मुझे मैंने किया कि नहीं, but this is what they tell me, and I have like, ठीक है, मैं तो अभी भी सेम ही हूँ, अभी भी मैं इतना ही मस्ती करता हूँ. मेरे में according to I play lots of pranks, the pranks in a positive way where I'm actually making someone smile. मैं मस्ती भी इतना ही कर लेता हूँ with my friends and all. अभी भी रोस्ट भी उतना ही करता हूँ, पर वो रोस्ट वो लेवल पे कि जहाँ पे it's not like actually demeaning them, but just to make them smile. So the human side is constant, ना, मस्ती करना है, टांग खींचना है. हाँ, वो तो बहुत. So अभी भी. So when kindness is, because when I'm sitting with you, I see kindness has so much of many aspects, not just about the monetary part of it. वापस आता है क्वेश्चन पे जो आप 19 years से spirituality test था. What does faith play in your life? Spirituality play in your life? Would you like to quote something? You did, through the conversation, you did touch on certain points. How does it help you? So my faith is in human beings. Okay. Religion, for me, kindness is the religion and should be the only religion. Okay. Because यहाँ पे हम भेदभाव करने वाला ही नहीं है. Kindness अगर religion है तो हम किसी भी भेदभाव नहीं करते, हर एक के साथ. It's not just human beings. It's with animals, it's with planet. कितना important है planet के लिए. मतलब this generation, अपना generation और अपने से एक ऊपर generation में, we have spoiled the environment. Now अभी मेरे talks में वो भी बहुत important हो गया है, क्योंकि प्लास्टिक का bottles कितना यूज करते हैं हम लोग. क्या करना चाहिए? मैं देखो अपना बॉटल लेके घूम रहा हूँ. So when you came with the bag, हाँ, तो उसमें मेरा बॉटल होता ही है, पानी का बॉटल होता ही है. And I see all of them are sustainable stuff. All are, sir. Even the bag is also cloth bag. That's also your turn now bag. कि क्यों हम लोग एक एनवायरनमेंट के लिए कुछ, लाइक अब आप देखो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन लोग ने कभी प्लास्टिक का बॉटल यूज किया है? नहीं, तभी था ही नहीं.
उसके बाद आया, उसके 10 साल के बाद आया, और अभी हम लोग ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया। अभी नेक्स्ट जनरेशन वो सहन करने वाली। लकीली वो अभी यूएन का जो SDG आया है और स्कूल्स में लोग बताते हैं अभी, बट देन पॉइंट इज देन वो प्रोविजन नहीं हो रहा है। इसलिए कॉन्शियस डिसीजन, लाइक मैं लद्दाख गया था सेशन करने के लिए, तो वहाँ पे जो होस्ट थी मेरी, हम लोग शाम को डिनर पे गए। दिस इज अराउंड 2016 एंड हम लोग डिनर कर रहे हैं एंड अभी ये नया सिस्टम है, पहले ये सिस्टम नहीं था। डिनर कर रहे हैं तो स्टार्टर आता है, फिर वो आदमी प्लेट चेंज करता है, अच्छा, वापस कुछ रखता है, फिर वो आदमी वापस प्लेट चेंज करता है। घर पे हम लोग करते हैं, घर पे हम लोग वही चीज में रोटी खाते हैं, वही चीज में दाल चावल भी खा लेते हैं। दैट्स द इंडियन वे ऑफ ईटिंग। दैट्स द इंडियन वे ऑफ ईटिंग। तो वहाँ पे वो लेडी ने चेंज नहीं किया, मैंने वो चीज़ पकड़ लिया। अभी लास्ट 8 साल से मैंने कभी कोई भी रेस्टोरेंट हो, फाइन डाइन हो, कुछ भी हो, मैं प्लेट चेंज नहीं करता। अभी परसों ही गया था मैं एंड वो बोला सर आई हैव टू चेंज द प्लेट। आई सेड नहीं सर इट्स अ रूल। आई सेड नो आई वांट टू सेव वाटर। ओके, दिस इज स्मॉल एक्ट ऑफ सेविंग वाटर। सेविंग वाटर। अभी एक प्लेट से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मेरे जैसे एक प्लेट वाले ऐसे 100 प्लेट होंगे जो लोग चेंज करते हैं, और वो एक प्लेट से भी फर्क पड़ता है। सो इफ यू दैट कॉन्शियसली इफ यू टेक डिसीजन। अभी कल मैंने और एक चीज़ पढ़ा कि हम लोग होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे 3 डस्टबिन होते हैं। एक बाथरूम में डस्टबिन होता है, रूम में होता है, और स्टार्टिंग में दरवाजा के पास डस्टबिन होता है। इफ यू सी कॉन्शियसली हम लोग एक कुछ यहाँ फेंकते, कुछ वहाँ फेंकते, कुछ बाथरूम में फेंकते। तीनों डस्टबिन यूज किए, यानी तीनों ब्लैक बैग्स यूज हुए। तो तीनों ब्लैक बैग, भले उसमें एक ही चीज पड़ा रहेगा, होटल में तो ज्यादा यूज नहीं करता, पर वो उसके लिए वो लोग तो थ्रो कर देंगे तीनों प्लास्टिक बैग। अगेन नो मोर प्लास्टिक विल कम इनटू द पिक्चर। सो कॉन्शियसली इफ यू टेक डिसीजंस, कॉन्शियसली इफ यू टेक चांसेस, इससे मैं सस्टेनेबली रह सकता हूं कि नहीं। लाइक कपड़े, लाइक माई टारगेट इज दैट इन द एंड मेरे पास सिर्फ 7 कपड़े होने चाहिए। ये सब था पहले हम लोग के शास्त्र में। एवरीथिंग वाज देयर। It's said that a yogi, when he dies, he burns everything because उसका एक कपड़ा रहता है, and people who kind of give up everything, they have only 1 or 2 pieces of cloth and they just burn everything while they go. So that's my thing. मेरे को सिर्फ 7 कपड़े चाहिए, बस उतना ही होना है। बहुत बहुत हो गए 7 कपड़े, इट्स मोर देन इनफ। पर अभी क्या है ना, हम लोग को इम्प्रेस करना है। ये ब्रांड पहनना है, वो ब्रांड पहनना है, ये कपड़े पहनना है। I have a friend who keeps on donating clothes because he doesn't repeat his clothes. That's the reason of. That's also kindness of a certain kind. But if you are not repeating your clothes, you're buying also, na? You're buying also. अभी there are brands who are fast fashion brand. हर 3 महीने में brand वो लोग अपना fashion change करते हैं, and that is actually affecting the planet. और landfill बढ़ते जा रहे हैं, और ये next generation और environment के लिए अच्छा नहीं है। पर ये सब decision हम लोग को खुद को लेना पड़ेगा, खुद को सोचना पड़ेगा कि ये मुझे नहीं करना है। तो जब हम लोग सब लोग सोचेंगे तो डिफरेंस आएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा होगा ना, हमारे बच्चे और उनके बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है। वी आर ब्रिंगिंग ऑन टेरिबल टाइम। जैसे आपने एक बात बोला कि प्लास्टिक इज नॉट बीन टेकन केयर ऑफ, इट्स नॉट, देयर इज नो स्ट्रिक्ट imposition of any kind of a penalty on people who are using plastic in a certain, just throwing it away, handling water, because these are scarcities और जो वापस नहीं आने वाला, नहीं आएगा। there is only one planet, planet A, there is no planet B, there is no plan B. Yes, so we are messing up with the next generation. Yes. So super thoughts है आपके, क्या अच्छी बात है, and hope this touches everybody who kind of listens to this. I like to see many people with the card, मुझे भी देके जाए, so I can do something. Probably card नहीं, but probably it makes me a little more kinder sitting here listening to you. What is the message you would like to give? मैं तो हर एक चीज, हम एंड में तो एक ही चीज बोलता हूं, add this more and let it touch more lives. What is the kind of message? मैं तो सिर्फ 3 ही चीज बोलता हूं हमेशा। एक तो बी काइंड, सेकंड इज बी काइंड, एंड थर्ड इज बी काइंड। बस जितना हो सके यू जस्ट बी काइंड। मतलब आपको इतना चांस मिलता है पूरे दिन में। सुबह ले, मेरा एक वीडियो है 40 acts of kindness, 40 acts of kindness, काफी वायरल हो गया वो वीडियो। एंड उसमें मैंने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आप क्या क्या काइंड एक्ट कर सकते हैं। मतलब सुबह 6 बजे आपको रास्ते पे वो गाड़ी धोने वाले दिखते हैं, उनके साथ से लेकर रात को 11 बजे आप ऑटो पकड़ रहे घर पे जाने के लिए, तब से लेकर आप क्या क्या काइंड एक्ट कर सकते हैं। वीडियो इतना वायरल हो गया है कि पीपल हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इन द लाइफ। तो उसमें मैंने हर एक कम्युनिटी वर्कर को भी टच किया। उसमें मैंने पोस्टमैन को भी दिखाया है, पुलिसमैन को भी दिखाया, ट्रैफिक पुलिसमैन को दिखाया है, रास्ते पे बेगर्स को दिखाया है, सुबह गाड़ी धोने वाला दिखाया है, फिर ऑटो वाला है, टैक्सी वाला है। मतलब हर एक जन को मैंने उसमें दिखाया कि कैसे आप हर एक जन के साथ एक अच्छा काम कर सकते हो। आप जैसा सोच कैसे लेके चल सकते हैं हम, बिकॉज
See, we are a greedy generation. I agree to whatever you say. मुझे शो पे बैठना तो मेरे को अलग अलग कपड़े में रहना बिकॉज पीपल विल वॉच मी. आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग इट दैट वे. सो एज जनरेशन छोटी छोटी चीजों में तो ध्यान देना ही पड़ेगा. You touch here on this point, but small things where we can add and continue to be more kind every day. One word आपने बोला kind, which I take it as one word with a lot of shouting it out and be kind. I think How can you pass on the love? do a conscious living now. Do a conscious living for everything. मतलब एक चीज भी अगर हम लोग के वजह से अगर लगता है तो सोचो कि ये बोलने से क्या मैं इसको हर्ट कर रहा हूँ, ये करने से क्या मैं एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा हूँ, ये करने से क्या मैं इस एनिमल को हर्ट कर रहा हूँ. मतलब हर एक चीज के बारे में अगर आप सोचेंगे ना कॉन्शियसली तो ये पॉसिबल है हर एक चीज के लिए. अभी मैं घर पे भी अगर खाना खा रहा हूँ, स्पून भी आई सी टू दैट आई यूज द सेम वन स्पून फॉर एवरीथिंग इफ आई मीनिंग. मैंने कहा था ये इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग. अब हर एक चीज के लिए जरूरत नहीं है. वो स्पून पानी कितना यूज करना है वही सोचते हम लोग. नहीं, जरूरत नहीं. मतलब एक मिनिमलिस्ट लाइफ अगर आप जीना चालू करोगे एज जस्ट अ नीड, ऑटोमेटिकली वर्ल्ड विल बी मच बेटर प्लेस. आपको समझ में नहीं रही आपके अभी स्प्लर्जिंग मनी के उसमें द एनवायरमेंट इज गेटिंग अफेक्टेड एंड द नेक्स्ट जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन में आपके बच्चे ही होने वाले एंड दे आर गोइंग टू गेट. मतलब आई मीन एज अ पेरेंट कोई भी चाहेगा कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाऊँ, पर ये हम लोग बुरा छोड़ के जा रहे हैं. और कितना भी आप करो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अगर आप बुरा कर रहे हो, अगर वो उनके लिए बुरा हो तो हमारे बच्चे के लिए बुरा होना. तो वो कॉन्शियस डिसीजन जब आएगा ना आपके उसमें कि मुझे ये नहीं करना है, ये मुझे दिस इज द स्टेप. एक काइंडनेस का थॉट मैं बोलता हूँ हम लोग सब में है, सब जगह लिखा हुआ है, पर हम लोग बस खाली फॉलो करो. हमारा सबके डीएनए में, लाइक मुझे तो चाहिए 20 साल के बाद ये कार्ड होने नहीं चाहिए. सबके डीएनए में आज जाके मतलब आपको बाहर निकल के यही सोचना कि आज मैं क्या अच्छा करूं. मतलब ढूंढो कि आपके काम. वो एंटीना खुला, वो एंटीना स्कूल में ही होता है फिर बंद हो जाता है. वो एंटीना खोलना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ कितना चांसेस है. रेस्टोरेंट में जाते हो, अभी नीचे मैं कॉफी पी रहा था तो वो जो आदमी है उसको मैं नाम पूछता हूँ. फिर जब भी मैं उसको नाम बोला, आदमी को सबसे अच्छा मीठा क्या लगता है, अपना नाम. फिर मैं उसको अपने नाम उसके नाम से बुलाता हूँ तो उसको कितना अच्छा लगता है. तो ये कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए कि आपको ये. फिर लिफ्ट मैन है तो उसको थैंक यू बोलना इंपॉर्टेंट था. मतलब इतनी स्टोरीज में, मतलब मेरे पास इतनी स्टोरीज है कि हर एक जन के साथ आप कैसे उसको आप एक स्माइल करो. बिल्डिंग में वॉचमैन है, वो आपको सलाम मारता है, वो तो मारता है, उसका काम है. पर आपने कभी उसको पूछा भाई कैसे हो आज आप, अरे आपकी मम्मी ठीक नहीं थी, कैसी है आप. एक सिंपल क्वेश्चन पूछना आपको, एक क्वेश्चन आपको. ये मतलब आप चलो आपको टाइम वेस्ट ना करता, आप लिफ्ट के लिए खड़े हो तभी खाली उसको पूछ लो और उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है. ही विल रिमेंबर यू. आप भले उसको भूल जाओ, ही विल रिमेंबर यू. घर पे पोस्टमैन आता है, अभी तो पोस्टमैन आता नहीं, कुरियर मैन आता है, उसको आप वो चॉकलेट दे दो. मेरे घर के दरवाजे के पास चॉकलेट पड़ा होता है, बहुत टाइम वो लोग पॉकेट में रखते चॉकलेट. मैं क्यों, खा लो, मैं अपने घर पे जाके बच्चे को दूंगा. मतलब एक फादर क्या सोचता है अपने कि नहीं ये चॉकलेट मेरे बेटे को दूंगा. वो खा सकते हैं उस टाइम पे, मतलब मैं तो मैं खा लूँ कि मुझे चॉकलेट पसंद है, पर वो सोचता है कि नहीं मैं जाके अपने बेटे को दूंगा. क्यों, उनके पास चॉकलेट रोज नहीं मिलती. और हमारे घर पे कभी इतनी मिठाई आ जाती कि पता नहीं इसको क्या करें. और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो हम लोग शुगर बिना खाते अभी, तो मिठाई वेस्ट जाती, कभी कभी सड़ जाती, एंड वी डोंट शेयर. तो ये ज्यादा है तो शेयर करो. आपकी जरूरत बहुत कम है टू लिव, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली बी काइंड. So today when you're sitting in front of you, I want this to be a virus of kindness which should spread, touch many more lives, and I'd love to be a part of your journey and do whatever I can in the best capability sitting here and people who are hearing us to pass on the love, the kindness from your own. Thank you so much. Thank you very Rishabh much. ji. Thank you so much for being on the show and giving your time, because this is a super act of kindness you just did. Thank you so much. It's your turn now. Call for the cards and do keep on spreading smiles through this. So make sure cards. that the number comes on and you Done. pass on the love. Perfect. Thank you so much. Our turn now. It's your turn now. Thank you. Thank you. Thank you.